Evening, friends. On behalf of My Retired Life Foundation, we extend a very hearty welcome to all of you. And today we have a very, very interesting program, resilience in old age. As you know, the resilience is a very, very important issue, a crucial issue in the lives journey of the senior citizens. Because we fall sick, we have to come back with resilience. We feel lonely, we have to come back with resilience. There are several physical and psychological issues which require a strong sense of resilience. And to talk on this particular topic, we have a renowned geriatric counselor who is very close to us. All of you know her, Amruta Lovekar. Amruta Lovekar is a very seasoned geriatric counselor. She is also the project counselor of the Graceful Living, which is a joint venture between Tulsi Trust and the Just Low Hospital. She has been with us earlier also, and her last session was, I remember, as far as I remember, the logotherapy, which was an excellent session. So I invite Amruta to take over the session. Amruta, the floor is open. Okay, so thank you, Dr. Sen Gupta, for inviting me once again. It's a pleasure to be with all of you. और आज का जो टॉपिक है, so resilience in old age, as you said. तो I was just trying to see what is resilience in Hindi, और उसके अलग अलग जो definitions है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी. तो उसमें जो है, मतलब जैसे अभी सर ने कहा कि we want to, मतलब कुछ भी समझो, अगर illness आता है या फिर any difficulty that we go through, so we bounce back, we come back. So that is in general the meaning of resilience. And मुझे ये भी लगता है कि as senior citizens आप लोग मेरे सामने हैं, तो आप लोगों ने भी बहुत सारा difficulties है, you have gone through that. So to some extent you know about the subject and you will also be able to tell me. So kindly share. अभी मतलब अगर हमको वक्त मिलता है तो कि आपके experiences क्या है, how you have gone through difficulties, what are the attitudes that you have, मतलब आपके कौन से attitudes रहे हैं, तो आप भी please share कीजिए. So this is a subject जिसके बारे में आप लोगों को भी मालूम है. मेरा ये सेशन में यही प्रयत्न है कि इसके ऊपर जो काफी रिसर्च हुआ है, ओके, तो ये आपके सामने मैं रखूं. Okay, and if possible, we have an exchange of views, and if you can share your experiences, that will be really good. Okay, so I'll start off now. You can hear me properly, and you can see the presentation also. Yeah, we can see the presentation. We can hear you also. Okay, fine. So in between भी अगर आपको लगता है कि you want to stop me, you want to say something, you want to share something, please feel free to stop me. ओके, तो रेजिलियंस यानी क्या? ओके, तो जैसे अभी सर ने भी बताया, सो इट इज द एबिलिटी टू बी हैप्पी, सक्सेसफुल आफ्टर something bad has happened, after an adverse event has occurred, after an illness has taken place, after maybe we have gone through some mental trauma, yeah, maybe there is some financial difficulty that we are facing, or maybe a relationship issue that we are facing. So the ability to bounce back, to spring back. Okay, so the word resilience जो हम लोग बोलते हैं कि किसी से हम लोग कोई अगर मुश्किल परिस्थिति होती है तो उसका सामना डट के करना. Okay, so this word resilience, it originates from the Latin word which means salir. Okay, it comes from the Latin word salir, which means to spring up. Okay, and resilere means to spring back. कुछ हुआ, कुछ कठिन परिस्थिति आई, उसका सामना करके मैं और stronger मैं वापस आई. Okay, so that is the meaning of resilience. Okay, and as I said, all of you have gone through difficult circumstances. So इसमें के अलग अलग जो बहुत सारा इसमें research हुआ है, so that is something that I will put in front of you. Okay, so the American Psychological Association, so they have also defined resilience, and they have said, they have defined it as the process of adapting well in the face of adversity, trauma, tragedy, threats,
or significant sources of stress. Okay, so process of adapting well. So an adverse event occurs and then I adapt to it, I cope with it. Okay, I adjust to it and then I rebound back. Okay, so it is basically the capacity to bounce back after a difficult situation. Okay, so what happens when we are resilient? What are the characteristics? What happens? How can we know that we are resilient? Okay, तो एक तो ये है कि tolerate adverse events or their side effects. Okay, so generally there are a lot of people who will say कि I can't bear this. Okay, I can't bear that, you know, something bad happens to me. Okay, so anything that that is unfavorable, if we are not able to tolerate that in any way, okay, so then it means that our resilience is very low. Okay, so just in our office, you know, I was just seeing today that, you know, there was one girl who said that, you know, we were having lunch and she said that, you know, we were getting late for lunch. So she said, you know, I just can't stand having, you know, my lunch late. Okay, so that she felt was a very, very adverse event. So sometimes it might happen that because of some work or, you know, because of some meetings, you might have to, you know, you might have to adjust and you might have to have your meals late. Okay, so some people might not be able to tolerate that. Okay, so second is having self-awareness to recognize my own emotions and how they affect you. Okay, so whenever a difficult situation occurs, what is happening to me? Am I aware of how this is affecting me? Am I feeling sad? Am I feeling angry? Am I feeling that I will not be able to tolerate this? What am I feeling? Okay, so the clarity about my own emotions and what I'm going through. So that is also another way in which we can realize that we are resilient. So the ability to recognize my own emotions. तीसरा ये है कि view stressful experiences as something that can build strength. ओके तो ये बहुत सारे लोग हम लोग कर पाते हैं, कई लोग हम लोग नहीं कर पाते हैं. तो seeing stressful experiences as something that can build our strength. Most of us don't want stressful experiences at all. ओके सो नहीं चाहिए, मतलब कोई भी डिफिकल्टी आती है किसी को विलिंगली नहीं चाहिए होती है. बट हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा अलग तरीके से देख के उसमें हम लोग स्ट्रेंथ कैसे पैदा कर सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ. स्टीफन हॉकिंग का आपने नाम सुना होगा. ओके सो वेल नोन फिजिसिस्ट. He wrote the very popular book called A Brief History of Time. तो उनको ALS यानी it is also called the Lou Gehrig's disease. So very very you know deadly disease जिसमें he was paralyzed. You know, from the stomach, and you know he was not able to walk properly. He was on a wheelchair. Okay, तो but उन्होंने he did not allow that disability or he did not allow that disease to define him. Okay, so in 2007, Stephen Hawking in this state, when he had this Lou Gehrig's disease, in that state, he said that he wanted to go into space and he wanted to conduct research, and in 2009 he was able to do that. Okay, so ये जो है stressful experiences है, illness definitely एक बहुत बड़ा stressful experiences है, but he built that strength and whatever goal he had, he was able to accomplish that. Okay, so viewing stressful experiences in a different light and still, okay, despite having those illnesses or having that stressful experiences, we are able to gain that strength. The next one is accept change with a positive attitude. Okay, a lot of senior citizens face a challenge doing that. You know, accepting change is something difficult. Okay, so how can we do that with a positive attitude? Okay, so that is another you know feature
of resilience. Another, this is feel that you don't depend on your circumstances, but your decisions. Okay, so it is not our circumstances that define us, but we are able to, go beyond that. And whatever decisions we are taking, we try and let those decisions define us rather than be at the mercy of our circumstances. The other, this is, understanding that any challenge is an opportunity for growth and learning. Okay, तो जब भी ये characteristics या ये जो features मतलब होते हैं एक व्यक्ति में, तो तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो आदमी resilient है. ओके, सो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आप लोगों ने भी चैलेंजेस झेले होंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हैव वी बाउंस्ड बैक, हैव वी लर्नड समथिंग फ्रॉम आवर चैलेंजेस, एंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हैव वी बिकम अ बेटर पर्सन. Okay, so those are the important questions we need to ask if we want to develop our resilience, or maybe if we are a resilient person. Okay, so as I said, we all have resilience. कोई ना कोई adverse event सभी लोगों ने, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसी ने कोई difficulty, stressful event नहीं face किया होगा. Okay, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई जो event है जिसको मैं चाहती हूँ वो हिसाब से मैंने उसका सामना नहीं किया होगा. Okay, so maybe I wish that I could have face this in a much better way, or maybe I don't have a solution for this, so I'm having a difficulty facing this circumstance. But all of us to some or a large extent possess or have this resilience. Okay, but research is telling us time and again that resilience is also a skill. ओके, तो ये सिर्फ सर्कमस्टांसेस नहीं है कि मेरे इसमें, मुझे समझो बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट मेरा था, मेरा अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा था, मुझे बहुत लोगों ने मदद की, मेरा मतलब बहुत सपोर्टिव मुझे लोग मिले, तो वो सर्कमस्टांसेस वो तो है, बट दे आर सेइंग, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टडी, or that is why we need to understand this concept, is because they are saying that resilience is also a skill which can be learned, which can be developed, and how we can develop that is something that we need to see. Okay, तो इसमें बहुत सारा अभी इंटरेस्ट है. अगर आप रेजिलियंस एंड एजिंग या फिर रेजिलियंस के ऊपर भी आप समझो गूगल भी करते हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है. ओके, सो ये व्हाई इज देयर अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन रेजिलियंस. ओके, तो ये रेजिलियंस के वजह से it leads to not only psychological and emotional well-being, but it also helps in, if we are able to maintain it long term, we will be able to continue to face difficulties in a much better way. Okay, सिर्फ एक दो difficulties face करके अगर उसका कोई मुझे use नहीं है, then I'm not going to be interested in cultivating resilience. But they are saying that psychological well-being तो है ही, but अगर ये develop करके उसको हम maintain कर सकते हैं, so then it can be a very very useful thing for us, and that is why we need to learn about this concept. Okay, so research says that the more resilient you become, you will be able to, whatever mental challenges that you are facing, you will be, समझो low moods है, हम लोगों को डिप्रेस लगता है, तो ये सब जो है वो definitely will decrease, that will reduce, and that is why we need to be interested in resilience. Okay, so resilience is something that anyone can learn and develop over time. It is a process. It is not a personality trait. और अभी तक यही ये हो गया था, अभी तक यही जनरली मतलब लोग, मतलब जनरली लोग समझते हैं कि भाई उनको तो एक क्या अच्छा एनवायरनमेंट मिला, उनकी तो क्या फैमिली ही अच्छी है. ओके, तो इसके वजह से
that person is more resilient, but they are saying it's not just your environment, but these are personality traits which you can cultivate, which you can develop, which you can work on, and that is why it is important. Okay, so it involves behaviors. Okay, generally ऐसा ये समझते हैं कि it is a trait which people either resilient है या नहीं है, तो ऐसा नहीं है. Okay, so it involves behaviors, it involves thoughts, and it involves actions which can be learned. But they are also saying that it has to be developed ahead of crisis. अगर मुझे कोई crisis अभी आता है और तभी मैं रेजिलियंस के बारे में सोचती हूँ या फिर मैं ये सोचती हूँ कि अभी मुझे कैसे स्ट्रांग होना है, तो जनरली इट माइट नॉट वर्क. We are not saying that it will not work at all, but resilience is something that we need to develop ahead of the crisis, before the crisis occurs, not after it occurs. It might be possible that people will just melt under that, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग totally उसके अंडर आके हम लोग पूरे तरीके से डिप्रेस हो सकते हैं, या फिर we can be totally consumed by the crisis that we are facing. तो ऐसा ना हो, इसके लिए we need to develop that ahead of the crisis or the stressful situation. ये भी है. और जनरली बहुत सारा जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन आता है, ओके, तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि पैंडेमिक के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि सीनियर सिटीजन्स ने बाहर नहीं निकलना चाहिए, सीनियर सिटीजन्स ने बहुत सारा प्रिकॉशंस लेना चाहिए, बट बहुत सारी जो पॉजिटिव थिंग्स थी अबाउट सीनियर सिटीजन्स, अबाउट द वे दे हैव कोप्ड विद द पैंडेमिक, तो वो जनरली हम लोग देखते हैं कि वो सामने नहीं आया है. Okay, and that is something that needs to be brought to the forefront. Okay, a lot of studies have shown that older adults were less likely to experience pandemic related anxiety, depression and stress than other age groups. यानी जो young age group था या फिर जो middle age लोग थे, उनसे definitely ज्यादा senior citizens, older adults have been able to face this crisis than younger people or middle-aged adults. Okay, तो ये कहीं ना कहीं सामने नहीं आता है. And why has this happened? This has happened because they possess, because they have this quality of rebounding, of bouncing back, of adjusting, of facing a difficulty. And because they were able to do that, because they were able to handle, circumstances earlier in their life, only because of that, they were also able to experience less anxiety, less depression, less stress than other age groups. Okay, but ये कहीं ना कहीं सामने नहीं आता है. And one of the reasons is they have a reservoir of knowledge and skills that have helped them cope with challenges over many decades. Okay, so that is something that needs to be acknowledged, and that is why they have been able to experience less anxiety. Okay, and studies have basically shown that. Okay, and another thing which they saw in the researches which were done, they saw that they did not see a big change in mental health. Okay, younger generation में, middle aged लोगों में बहुत एक ड्रास्टिक चेंज इन मेंटल हेल्थ दिखाई दिया. मतलब पहले ठीक थे और फिर ये पैंडेमिक में उनका जो मेंटल हेल्थ है वो एकदम अफेक्ट हो गया, एंड they were totally depressed because of circumstances or whatever. But senior citizens में वो हिसाब से इतना मेंटल हेल्थ में चेंज नहीं हुआ है. Okay, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सीनियर सिटीजन्स के बारे में सामने आने चाहिए, जो नहीं होता है. आपको क्या लगता है, ये ऐसा हुआ है? What do you feel? Does this resonate with you? Yes, madam. Can I respond? Yes, yes. कौन बोल रहे हैं सर? आप बोलेंगे, कौन बोल रहे हैं? Can I speak? N.K. Agarwal.
हाँ, yes sir, please go ahead. You see, I don't think I am very much in agreement with you, because in the case of older adults, they suddenly lose all their enthusiasm and everything, and they leave it to just as fait accompli, saying that anyway, now there is nothing much that we can do about it. So let the medicines take care of it. Let our let our people who are supporting us take care of us. Whereas in the case of youngsters, since they know that they have to support their family, they have to earn their living and all that, they bounce back. They try to bounce back much earlier. So this is what my observation has been, at least in the cases that I have seen so far. Thank you. Okay, someone else wanted to say something? Madam, shall I say something? Yes. I'm Samara Sen Gupta. So, two points I want to say to you. तो कभी-कभी problem आएगा तो just now you said, ठीक है, problem आया तो आया है, आगे क्या किया जाए? हाँ, Accepting very positive is very important. That's very important. And number 2 point, problem से खुश होना भी एक point है, madam. वो कैसे ये करके इसलिए That's a beautiful point. Yeah. इसलिए I'm giving my own example. मेरा central vision totally गया है आंखों का, लेकिन मैं खुश थी, पूरा blind तो नहीं हुआ है ना, चलो ठीक है करके. Correct. तो problem से higher problem नहीं आया है करके खुश हो जाना is very important. Problem तो आया है, जाने दो, higher problem तो नहीं आया ना, यही तो चलेगा करके. माने problem से slightly खुश हो जाना भी very important. तो ब्लाइंड तो नहीं हुआ है, विजन ही तो सेंटर विजन तो गया है, ब्लाइंड तो नहीं हुआ है ना करके. ये जो एटीट्यूड है वो भी इम्पोर्टेंट है. बट सर एनके अग्रवाल सर ने भी जो बोला कि बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं तो मे बी दे फेस डिफिकल्टीज, बट ये ओवरऑल जो रिसर्चेस है उसके बारे में बात कर रही हूँ. और दूसरा ये भी है, बहुत सारे जो यंग पीपल है तो उनको जब भी उनकी नौकरी वगैरह गई है तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में बहुत मतलब इंक्रीज हुआ है. और हेल्पलाइंस वगैरह हैड अ मेजर प्रॉब्लम रिस्पॉन्डिंग टू यंग पीपल. और बहुत सारे लोगों के जॉब्स जाने के वजह से दैट हैज अफेक्टेड देयर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. तो ये भी मतलब दिखाई दिया है. तो दोनों तरफ से ये हो सकता है. हेलो, yes. हाँ, सुनाई दे रहे हैं. Yeah. Someone is saying something. No, madam, continue. हाँ, yes, please, you were saying something. Yeah, somebody also wanted to say, so I kept quiet. Yeah, please go ahead. Okay, basically, as you pointed out, resilience depends upon your attitude. Correct. What type of an attitude? Now, I have been watching, because I also gave this, not at this time, earlier I gave this topic to the student, problem of old age and things like that. What I find is, at the old age, that is, especially after retirement, if you have developed a habit of how to live, it is they have to learn how to live after retirement. Most of the people who are working, especially women who are working, now when they are after retire, they have to learn how to live without a job. Job was the hold on them. Now what happens is, such people, what happened, they have an attitude, they also develop an attitude along with that fine, problems are there, but you go by a little bit of, you can call it spirituality. You live today, don't look back, don't keep on worrying about the future. If this attitude is there, number one. Second, you have got a goal in life. Most important, according to me, if there is a goal in life, you will solve all problems. What happens if you don't have a goal? Then you are not resilient. This is my view. Correct. I think, madam, what you're saying is very correct. ये जो है ना, जनरली हम लोग जब भी रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं तभी जनरली हम लोग सिर्फ हमारा फाइनेंशियली हम लोग कैसे वेल ऑफ होंगे या फाइनेंशियली हम लोग कैसे सिक्योर होंगे इसी के बारे में हम लोग सोचते हैं जनरली अगर देखा जाए. बट हम लोग उसके मतलब दूसरे कोई एस्पेक्ट्स के बारे में जनरली रिटायरमेंट के पहले सोचा नहीं जाता है कि हाउ आई एम गोइंग टू यूटिलाइज माय टाइम,
कैसे मेरे लिविंग अरेंजमेंट्स होंगे, whether I want to work on my relationship. तो ये सब जो चीजें हैं जनरली सीनियर सिटीजन्स हम लोग देखते हैं कि उसके बारे में जनरली सोचते नहीं है. सिर्फ बहुत सारा पैसा होगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हम लोग करेंगे, इसी के बारे में सोचते हैं. ओके दूसरा हम लोग जैसे आपने कहा कि कोई ना कोई पर्पस होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट वी स्ट्रेस इन मोस्ट ऑफ द प्री रिटायरमेंट प्रोग्राम्स विच वी डू. तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. आई हैड गॉन फॉर मैं एक छोटा सा एक ये था एक वर्कशॉप था, तो उसमें एक डॉक्टर भी आए थे. तो वो डॉक्टर उन्होंने प्रैक्टिस स्टॉप कर दी थी, तो वो बातचीत हो रही थी, सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे. तो तभी वो जो डॉक्टर है तो उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस करते वक्त उन्होंने कहा कि आई एम मैं ये बजाता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ, फ्लूटिस्ट. ओके सो ही सेड आई एम अ फ्लूटिस्ट. So he did not say that he is a doctor. He just said that I'm a flutist and my name. सिर्फ नाम बताया, डॉक्टर है ऐसा नहीं बताया. तो I was quite curious and मैंने उनको कहा कि जनरली डॉक्टर्स विल मतलब अपना मैं डॉक्टर हूं करके जनरली इंट्रोड्यूस करते ही हैं, तो आपने खुद को डॉक्टर करके क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया. तो तभी उन्होंने कहा कि मेरी जो अभी आइडेंटिटी है एज अ फ्लॉटिस्ट इज मच मोर इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू मुझे ये कंटिन्यू करना है मेरी आइडेंटिटी. सो मेरी आइडेंटिटी एज अ फ्लॉटिस्ट इज मच मोर इम्पोर्टेंट टू मी नाउ, एंड दैट इज व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ एज अ फ्लॉटिस्ट. तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसके लिए जनरली रिटायरमेंट के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन से हमारी हॉबीज क्या है, हमको क्या अच्छा लगता है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है. I hope you are relaxed now. हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, तो ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में थोड़ा बहुत प्लान करना बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके और ये हम लोग देखते हैं कि जनरली लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी सी के रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड जनरली अकॉर्डिंग टू रिसर्च 2 या 3 साल में अगर समझो हम लोग तैयारी नहीं करते हैं तो बहुत सारे इट कुड लीड टू मतलब मॉर्बिडिटीज ऑल्सो, या फिर इट कुड लीड टू मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इलनेसेस फिजिकल और मेंटल भी हो सकते हैं. तो इसके लिए रिटायरमेंट के बारे में तैयारी करना पहले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे क्या करना है लाइफ में ये भी इंपॉर्टेंट है. मैंने शायद आपको इनका भी एग्जाम्पल दिया होगा. देयर इज अ पर्सन कॉल्ड आबिद सुरती, तो जिनका आपने नाम सुना होगा. तो वो कार्टून करते हैं और उसके ही साथ साथ मीरा रोड भाईंदर में उन्होंने एक संस्था खोली है कॉल्ड वाटर, और उनका ये कहना है कि वाटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. ओके एंड वो कहते हैं कि अगर समझो पानी नहीं होगा, इट इज वाटर ड्रॉप डेड, ऐसा कुछ उनका वाटर और ड्रॉप डेड ऐसा दो कुछ उनके ये है मतलब संस्था के नाम है. तो वहां पे उन्होंने ये किया है कि इफ यू डू नॉट हैव वाटर देन यू आर गोइंग टू ड्रॉप डेड बिकॉज वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. तो द पॉइंट इज के वो मीरा रोड भाईंदर में अलग अलग जो सोसाइटीज है, रेसिडेंशियल सोसाइटीज है, अलग अलग जो म्युनिसिपल स्कूल्स है, और अभी वापस वो उनके काम की शुरुआत हुई है. तो वहां पे जाके जो लीकिंग टैप्स है उनको वो रिपेयर करने का काम करते हैं. Okay, so he feels that is the purpose in life. So, madam, you rightly pointed out that having some kind of a purpose is very, very important, and that will also help us to deal with difficult situations. Okay, another, this is, it talks about the paradox of aging. ओके बहुत सारा जो रिसर्च हुआ है, और ये रिसर्च भी जो हुआ है वो लोगों को देख के हुआ है, ऐसा नहीं कि बैठ के उन्होंने ऐसे ही पेपर्स लिखे हैं. तो उसमें उन्होंने कहा है कि इन स्पाइट ऑफ लॉसेस एंड फिजिकल डिक्लाइन, जैसे अभी समता मैडम ने कहा कि इन स्पाइट ऑफ लॉसेस एंड फिजिकल डिक्लाइन सम पीपल दे आर कंटेंट.
ओके और ये भी सीनियर सिटीजन्स में देखा गया है कि बहुत सारे जो सीनियर्स हैं वो ये होने के बावजूद भी दे फील कि अरे ज्यादा तो नहीं हुआ है ना, एटलीस्ट मैं ये तो कर सकती हूँ ना। तो ये लॉसेस एंड फिजिकल डिक्लाइन होने के बावजूद भी दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ इमोशनल वेलबींग, दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट। ओके, सो दैट इज वाई ये कैसा हम लोग अगर नहीं है तो हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. Other point they are trying to make through this research is that older adults see themselves as resilient because of the adversity. Okay, so मतलब I gave you the example of Stephen Hawking. तो वहां पे उन्होंने कहा है कि ये मेरे को जो ALS या फिर जो लू गेरिग्स डिजीज हुआ था, so he said that made me more determined to do my research. Okay, so I did not let that disease totally define me as a person. Okay, दूसरा ये मुझे लगता है सुधा चंद्रन करके एक जो सीरियल में डांसर मुझे है, एंड आई थिंक शी अंडरवेंट उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, आई थिंक क्वाइट लॉन्ग बैक 1986 or something, and people thought that she will give up dancing, and then उन्होंने artificial foot ये किया, and then she said that had it not been for my accident, I don't think I would have become so strong a person. Okay, so they are saying that difficulty, that adversity has, because of that adversity, I have become a stronger, more resilient person. So rather than saying that why me, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, why am I facing this, like maybe Samata madam also said, अरे और ज्यादा तो नहीं हुआ. So this adversity in some ways has helped me to become a better person, and also has helped me to overcome whatever problems that I have. आपको शायद अभय बंग करके, आपने एक सोशल वर्कर, बहुत जाने माने सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर अभय बंग और डॉक्टर रानी बंग, और उनको मैक्से से पुरस्कार भी मिला है. तो वो ट्राइबल एरियाज में बहुत सारे उनके ट्राइबल प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं. तो उन्होंने एक मराठी में बुक लिखा है कॉल्ड माझा साक्षात्कारी हृदय रोग. ओके, सो ही इज सेइंग दैट बिकॉज ऑफ माय हार्ट डिजीज, उसने साक्षात्कार किया, मतलब बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज एबल टू गेन एनलाइटनमेंट, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बिकम अ मोर इवॉल्व्ड पर्सन. ओके, सो हाउ वी आर facing or how we are looking at difficulty is the most important thing. Okay, मैडम, one more point I want to say. Yes. हाँ, जब भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो वर्क फास्ट हो जाता है मैडम. क्या होता है? वर्क जो है हम फास्ट हो जाता है. हम जो टारगेट रखते हैं कुछ काम करने के लिए, जल्दी हम करते हैं. बिकॉज अगेन माय ओन एग्जांपल, मेरा स्किट्स बनाती हूँ मैं, तो मेरा एक टारगेट था 20 अचीव करने के लिए. तो मैं हमेशा सोचती थी विजन थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा तो जल्दी काम खत्म कर देते हैं करके. आई फिनिश्ड इन 2 years. इसलिए वर्क फास्ट भी हो जाता है उससे. वर्क फास्ट भी हो जाता है, और हमको लगता है कि पता नहीं और क्या ज्यादा कुछ हो जाएगा, तो इसके लिए जो जल्दी खत्म करते हैं. वो हम लोग उसके बाद बचे, हाँ, उसके बाद कुछ बचेगा तो वो कैन कंटिन्यू द वर्क एज यूजुअल. हाँ, और टारगेट अचीव करने में फास्ट कर देते हैं, फास्ट हो जाता है. तो ये माय ओन एक्सपीरियंस. ओके, सो इसके लिए जो है ये एटीट्यूड इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई थिंक हेमा मैडम आल्सो पॉइंटेड आउट. नाउ रिसर्च जो है वो, पहले मैंने एक सक्सेसफुल एजिंग के ऊपर एक सेशन लिया था सबसे पहले. तो देयर a lot of research on successful aging had talked about कि how हम लोग, मतलब जो इलनेस है, तो इलनेस का जो रिस्क है वो कैसे कम होना चाहिए, हमारा फिजिकल और मेंटल फंक्शन कैसे कम, मतलब बढ़ाना चाहिए, और एक्टिव एंगेजमेंट विथ लाइफ कैसे होना चाहिए. तो ये जो है वो काफी सारे रिसर्च हैज शिफ्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स टू सब्जेक्टिव इंडिकेटर्स. यानी सब्जेक्टिव इंडिकेटर्स यानी क्या,
कि आदमी खुद, मुझे अगर इलनेस है तो आदमी खुद कैसे डिफाइन करता है कि इलनेस के वजह से क्या अफेक्ट हुआ है, या फिर अ लॉट ऑफ पीपल विल से इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिफिकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ इलनेसेस, a lot of people, as we said, are content and they want to do a lot of things, and they say in spite of physical difficulties they will say I am aging successfully. ओके तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं बट स्टिल दे से दैट आई एम एजिंग सक्सेसफुली. तो मैं खुद कैसे मेरा इलनेस डिफाइन करती हूं या करता हूं, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सब्जेक्टिव इंडिकेटर्स. हाउ एम आई डिफाइनिंग माय इशू, हाउ एम आई डिफाइनिंग माय प्रॉब्लम, एम आई एबल टू फील होप, एम आई एम आई एबल टू फील ग्रैटिट्यूड. ओके तो मेरा एटीट्यूड मैं कैसे डेवलप करूं, या मेरा एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स माय सिचुएशन, टुवर्ड्स माय इलनेस, दैट इज व्हाट इज नाउ रिसर्च इज पॉइंटिंग एट. सो स्ट्रेंथनिंग द इंडिविजुअल मोर एंड मोर. ओके एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग बाय मल्टी मॉर्बिडिटी रेजिलियंस. मतलब मल्टी मॉर्बिडिटी यानी क्या, बहुत सारे इलनेसेस होने के बावजूद भी आदमी resilient है. Okay, आदमी strong है and still feels that I will be able to overcome and still I am content, still I am quite satisfied and happy within my circumstances. So that is what is multi-morbidity, यानी multiple illnesses जहां पे होते हैं उसमें भी आदमी resilient कैसे हो सकता है. Okay, now these are the hallmarks of resilience. जो बहुत सारा ये हुआ है, रिसर्च भी हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि what are the hallmarks, what are again some of the major characteristics. Okay, the first one is rebounding from stress, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, and returning to a more balanced state of well-being. दूसरा, जैसे अभी मैडम भी कह रहे हैं, सस्टेन पर्पस. ये कभी हो सकता है हम लोग वापस, समझो इलनेस भी आया तो हम लोग वापस वो इसके ऊपर आ सकते हैं, या फिर मे बी स्टेबल स्टेट पे कैसे आ सकते हैं, या फिर जितना ठीक हो सकता है उतना हम लोग ठीक होने के बाद, when will that happen? When we have some kind of a purpose in life. Okay, so sustained purpose which helps us to keep going. Okay, which helps us to maybe face another day, which helps us to get up in the morning. Okay, and तीसरा है growth, emerging stronger from my stressful experiences. Okay, तो जैसे again जैसे मैं कह रही थी कि emerging stronger, जैसे स्टीफन हॉकिंग ने किया कि emerge stronger and still did that research, still wrote that book. Okay, so how can we emerge stronger from that? Okay, another example I can give you, how people have emerged stronger. Another example I will take, I think आपने कर्नल सैंडर्स का नाम आपने सुना होगा. ओके, ये कर्नल सैंडर्स है जिन्होंने KFC निकाला था. ओके, तो ये जो है आफ्टर रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 64 और 65, ओके, तो ही हैड स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट, कर्नल सैंडर्स. ओके, और काफी ये जाने माने हैं, वेल नोन सेलिब्रिटी, नॉट देयर एनीमोर. बट ये जो कर्नल सैंडर्स है, तो उन्होंने KFC खोला. ओके, एंड एट द एज ऑफ 65 ही रैन सम अदर रेस्टोरेंट. ओके, तो वो रेस्टोरेंट चला नहीं, ही डिड नॉट हैव मच इन्वेस्टमेंट्स, and at the age of 65 he was penniless and he had to, उनको social security के ऊपर रहना पड़ा, करीब $100 उनको मिलते थे महीने में वगैरह. So his situation was so bad, but still he had developed this liking for cooking. तो वो 9 साल की उम्र से कुकिंग करते थे, और उन्होंने चिकन का एक रेसिपी, KFC is about chicken or whatever, chicken nuggets or whatever, popcorn. तो वो जो चिकन का रेसिपी है, तो वो उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाके उन्होंने वो लोगों को खिलाया. And he faced opposition literally 1900 times.
1900 times different people rejected his chicken recipe. But he was able to emerge stronger, and then later on he met people who liked his chicken recipe, but he was rejected so many times. Okay, so whatever difficulty that we are facing, whatever rejections we are facing, emerging stronger from that is extremely important. So these are the hallmarks of resilience. Other key characteristics of resilience, mental जो mental health हम लोग कह सकते हैं, जैसे अभी मैडम भी बोल रहे थे, जैसे feeling some kind of hope in our life. Gratitude is also extremely important. So these are the mental characteristics. Okay, so feeling some kind of a hope. और ये शायद मैंने आपको ये real life story मुझे बताई कि नहीं, मुझे last time I might or might not have told you, but जॉन रोबलिंगटन करके एक इंजीनियर थे, और ये जो जॉन रोबलिंगटन है, हाउ वी कैन फील होप इवन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, इवन इन द मिडस्ट ऑफ सिवियर इलनेस. Okay, so ये जो जॉन रोबलिंगटन है, तो he was a well-known engineer, and this happened in this of around 1868-69. It's a real life story, and John Roblington wanted to build a Brooklyn Bridge in New York, and at that time bridges were not very common. ओके, तो उन्होंने सबने उनको बोला कि भाई ये ब्रिज वगैरह नहीं हो सकता है, आप मतलब इसमें झंझट में मत पड़िए, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डन. ही वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड, बट ही डिड नॉट गिव अप. ओके, ही सेड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बिल्ड दिस ब्रिज. हिज सन वाज आल्सो एन इंजीनियर, वॉशिंगटन रोबलिंगटन, एंड 2-3 इंजीनियर्स उनके जो फ्रेंड्स थे वो उनके साथ में आए, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट ब्रिज. आफ्टर 6 months वो जो कंस्ट्रक्शन साइट था, तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, एंड जॉन रोबलिंगटन पास्ड अवे इन दैट एक्सीडेंट. उनके जो बेटे हैं वॉशिंगटन रोबलिंगटन, वो बहुत severely he was paralyzed right from top to bottom, and even everyone thought that, you know, now this bridge is not going to be built. Even Washington Roblington thought, he was also very depressed, और उनको भी लगा कि ये नहीं हो सकता है. पर एक दिन बहुत मतलब दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद, one day he felt a sense of hope. Okay, so he saw that, you know, the curtains were opened. He saw the clear blue sky. He heard the chirping of the birds, and he saw what he could do. And Washington Roblington saw that although he was totally paralyzed, he was able to move only one finger, nothing else. He was able to move only one finger. Okay, and what did he do? His wife was looking after him, and with his wife, they developed a communication pattern in which, they tried to work out, you know, he tried to explain to her, you know, how he tried to explain, what are the further steps to build this bridge. Okay, and once she understood, because she was there involved a little bit earlier also, so she understood what directions had to be given to the engineers. So the engineers were called, and the work on this bridge was again restarted. And in 1883, this accident happened in 1870. So in 1883, after 13 years, Brooklyn Bridge was built. So what could this person do? What could Washington Roblington do? Just move one finger. Okay, so this sense of hope that is there. Okay, another, this of gratitude is also very important. Ek jo, there was this one, माँ और ये रहते थे, माँ और उसका बेटा रहते थे, and they did not have too much money. Okay, so this is also another real life, this which I have read about. And this lady, what did she do? That, they were not able to, at the end of the month, वो लोग
they wanted to give to charity, they wanted to do something for poor people. तो उन्होंने क्या किया कि अपने अपने उन्होंने gratitude jars बनाए. ओके, ग्रेटिट्यूड जार्स. तो वो हर दिन समझो जितना भी चेंज रहता था तो वो ग्रेटिट्यूड जार में डालते थे. एंड दे फेल्ट वेरी हैप्पी के एट द एंड ऑफ द मंथ दे वर एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग एटलीस्ट फॉर द पुअर एंड द डाउन ट्रॉडन. ओके, तो ये जो मेंटल ये है ऑफ mental characteristics of resilience जो है, okay, to feel that gratitude, to feel that hope. Okay, so that is extremely important. दूसरा है कि social connections. Okay, मेरे social connections है क्या, मेरे friends है क्या जिनके साथ मैं बात कर सकती हूँ, मेरे जो दिल में है whatever I am going through, am I really able to share that? Okay, having some kind of a social supportive relationships. So do I have that? That is the another social characteristic. और तीसरा जो है, okay, whether there is some kind of independence. Okay, हम लोगों ने ये भी देखा कि पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को बहुत सारे फैमिलीज में बाहर ही नहीं निकलने दिया. ये भी बहुत सारा हम लोगों ने देखा कि they were made to sit at home. समझो अगर कोई इसका वैक्सीन का शॉट भी लगाने के बाद they were not, even though they were feeling all right, even though doctors told them that you know you can move about, but still children said okay नहीं, आपको नहीं जाना है. तो ये this sense of independence which is there, physical health तुम आपका या फिर mobility, so all these things are very very important. और उसके ही साथ साथ what do I believe that whether मेरी जो illness है तो वो पूरे तरीके से मतलब अभी कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. तो ये हम लोग जनरली यही कहते हैं कि वृद्धत्व में इन ओल्ड एज हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर ही हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं. मैं क्या कर सकती हूं इसके ऊपर जनरली फोकस नहीं होता है. और ये फोकस कहीं ना कहीं हम लोगों को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हाउ डू आई, मेरा जो कंडीशन है उसको मैं कैसे हूं. ओके, एंड एज मैडम सेड, अ पर्सन कैन बी टोटली बिटर और अ पर्सन कैन से ओके और ज्यादा तो नहीं हुआ ना विजन, पूरे तरीके से मेरा विजन तो नहीं गया ना. तो इसके लिए एटीट्यूड इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ आई डिफाइन माय ओन कंडीशन is what is very important. Now, Madam, I want to add one point here. Yes. One thing also, as per my experience, I enjoy the joy of getting the disease. Because वो disease में क्या होता है, मेरे service में lines will travel, letters will dance, and the numbers will fall down. And the number जब देखती हूँ hide and seek game हो जाता है. Sometimes 2 letters, one गायब हो जाती है, other again it will come back. Hide and seek game भी चलता रहता है. So this is, I feel, the joy of getting the disease. Lines बहुत करोड़ हो जाते हैं. Joy of having the disease. Yes. Oh, enjoy okay. the disease. Enjoy the disease. In my case, as I told you, the lines will travel. They become curd. And the numbers, hide and seek game. 2, 3 numbers होगा तो one number will go back. Will not be seen. So, Again, madam, it will come back. I would request you to either talk about this or maybe write an article about the joy of having a disease, because that's a very good. That's a very Thank good you very title. much. That's a very Thank good you very title. much. Okay, because that's a very different way of looking at So something. because hide and seek हो जाते हैं ना वो numbers के साथ, इसलिए. हाँ, numbers Again के हो साथ जाता है. ये टेस्ट में क्या नंबर आते हैं, वो टेस्ट में क्या नंबर आते हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि डिटीरियरेशन हो रहा है. वो नहीं बोल रहे. नंबर्स कभी कभी 3-4 नंबर रखते हैं, गायब हो जाती है, फिर से अगेन इट विल कम बैक. ऐसे ही. Correct. So that's a very very, I think, madam, you please write. You can An write article. You can write an article, and the title Thank is you. already ready with you. Okay. Yes. So Thank you very much. Thank you, so, Amrita. Yeah. Madam, I would like to add one more thing. Yes, sir. Yes. Even sometimes in the worst condition, you should be able to evaluate yourself and limitations. For example, I have a lot of problems for walking, arthritis, foot ailment. And people say you should walk as much you want.
But after seeing the deterioration value over a period of 5 years, my knee joints are okay now, improved than before, except the swelling part at the feet. Correct. So I do a space walking, relax, and if something is more paining or more swelling, come back home, take some hot water or cold water, put your feet in the bucket with the salt, and that's it, and relax. So accept the things and know your limitations, rather than saying I will go for a marathon or a walkathon and our heartbeat is not enough. So develop it in step by step. If you feel comfortable, go ahead. If not, come back. Correct. So that attempt has to be made. Correct. That's all. करेक्ट. तो इसके लिए दैट अटेम्प्ट हैज टू बी मेड, और हम लोग देखते हैं कि बहुत बार ये अटेम्प्ट ही हम लोग नहीं करते. आपने जैसे ये इलनेस के बारे में बोला, अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ बकुल चैटर्जी, तो जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, बहुत सारे उनके ऊपर आर्टिकल्स आए हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन, इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म, ये बकुल चैटर्जी जो है वो आर्थराइटिस, जब भी आपने बोला तो वो मेरे ध्यान में आया कि आर्थराइटिस होने के बावजूद भी दिस लेडी वाज टोटली फ्रेल. एट द एज ऑफ 87 दिस लेडी वाज giving her first year BA exam. She was not able to hear properly. She was not able to write properly. She was constantly asking her professors in the class to maybe speak a little louder. But she said that I want to complete my BA exam. I have not been able to do it earlier in my life, but I want to do my BA, before I die. तो ये जो है जनरली हम लोग आगे अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं. Why? Because of ageist attitudes, as we say. What is ageism? Basically some beliefs that we have that there are certain things that we should not be doing in old age. सीखना नहीं चाहिए, समझो बाहर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, समझो अगर मुझे लगता है तो डांस नहीं करना चाहिए, तो नया कुछ सीखना नहीं चाहिए. तो ये जब जो चीजें हैं ना, तो वो हम लोग जनरली करने से कतराते हैं, या फिर वी जनरली डोंट अटेम्प्ट दैट, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब making that attempt is very very important. Another small example, because you said this, matlab is I had an uncle, unfortunately he passed away, but वो uncle ने at the age of I think maybe above 70 he did his law. Okay, so law का आपको मालूम है 3 साल का ये रहता है, कोर्स रहता है. तो वो लॉ का कोर्स में फर्स्ट ईयर ही पास्ड. ओके, सो ही पास्ड क्वाइट वेल. दूसरे साल में व्हाट हैपेंड वाज, आई थिंक ही हैड 6 सब्जेक्ट्स, और वो 6 सब्जेक्ट्स में से एक जो सब्जेक्ट है तो ही फेल्ड इन दैट. बाकी 5 सब्जेक्ट्स ही पास्ड. बट वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो वो इतने निराश और इतने डिप्रेस्ड हो गए कि उन्होंने पूरा वो LLB का जो उनका कोर्स था वो ही पूरा छोड़ दिया. ओके, तो ये जो है कि, और उनके प्रिंसिपल भी उनको बोल रहे थे कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, आपने 5 सब्जेक्ट्स की एग्जाम अच्छे से दे दी, एक अगर ये खराब गया आपका पेपर तो उसमें इतना कुछ ये करने की जरूरत नहीं है, आप वापस अटेम्प्ट कीजिए. पर हम लोग जनरली अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते हैं. ओके, तो ये अटेम्प्ट करना, और कभी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे जब भी हम लोग थोड़े रेजिलिएंट होंगे. ओके, जब भी हमारा एटीट्यूड होगा कि हाँ ये ठीक है बाबा, ये एडवर्स इवेंट था, ये डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस है, तो अगर मैं खुद को बोलती हूँ कि मैं आगे ही नहीं जा पाऊंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी. बट अगर मैं बोलती हूँ कि दैट डिफिकल्टी डज नॉट डिफाइन मी टोटली, ओके, लेट मी ट्राई दिस. ओके, तो ये इसके बहुत सारे और भी अलग अलग उन्होंने ये दिए हैं, मेजर्स भी दिए हैं, या what some techniques that we can use, so we can look at that also. तो ये जो है ना, अभी इन्होंने कहा है it's 6, तो मैं थोड़ा सा अभी जल्दी ये जो टेक्निक्स है वो मैं आपके सामने रखती हूँ, और आपके इंटरेस्ट और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये ट्राई कर सकते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि
रेजिलिएंट कभी होंगे जब भी पॉजिटिव इमोशंस होंगे। तो पॉजिटिव इमोशंस को ब्रॉडन करना है और ये पॉजिटिव इमोशंस को हमको बिल्ड करना है। तो ये साइकोलॉजी में ये थियोरी है विच इज ब्रॉडन एंड बिल्ड थियोरी। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये 3 इमोशंस इंपॉर्टेंट है। सो हाउ कैन वी एक्चुअली गो अबाउट डेवलपिंग दीज इमोशंस। ओके, तो ये वो कह रहे हैं कि ये इमोशंस हम लोग इवॉल्व कर सकते हैं, ये इमोशंस हम लोग पैदा कर सकते हैं। ये फीलिंग्स जो है जॉय का है, कंटेंटमेंट का है, इंटरेस्ट और क्यूरोसिटी का है, ये हमको इसके लिए कुछ कॉन्क्रीट हमको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो किस प्रकार के एफर्ट्स हम लोग ले सकते हैं? तो जॉय, ओके, तो इसके बहुत सारे उन्होंने टेक्निक्स दिए थे, उसके थोड़े बहुत टेक्निक्स मैं आपके सामने रख रही हूं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि राइट 3 फनी इंसिडेंट्स एंड हाउ दे मेड यू फील। ओके, सो टेक सम टाइम आउट। हम लोग जनरली कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ हम लोग ये जनरली करते नहीं हैं। कोई भी हमारे इसमें फनी इंसिडेंट हुआ हो, हाउ दैट मेड अस फील, कैसा हम लोगों को फीलिंग आया, तो इसके बारे में हम लोग कॉन्शियसली सोचें। ओके, एंड द मोर डीपर वी गो इनटू दैट एक्टिविटी, द मोर गुड वी आर गोइंग टू फील। राइट डाउन व्हाई यू फेल्ट दैट इट वाज फनी। अगर समझो नेगेटिविटी जो है वो हमको सोने के पहले आ रही है और उसके वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, तो राइट दीज फनी थिंग्स बिफोर यू गो टू बेड और रिपीट दीज फनी थिंग्स बिफोर you go to bed. Doing this activity daily for 7 days has been shown to reduce depression and boost joy for months after. तो ये जो है, ये सब चीजें करना ये हमारे हाथ में है. हम लोग जनरली, जैसे अभी सर ने कहा कि हम लोग सर्कमस्टांसेस के ऊपर छोड़ देते हैं. सर्कमस्टांसेस तो पूरे तरीके से हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर या फिर हम लोगों को कैसे फील होता है और अच्छे फीलिंग्स या अच्छे इमोशंस हमारे में जनरेट हो, तो इसके लिए हमको ही कुछ कोशिश करनी पड़ेगी. एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच यू कुड डू. ओके, अनदर थिंग जॉय में हम लोग ये कर सकते हैं कि कंप्लीटिंग एक्टिविटीज दैट ब्रिंग यू जॉय थ्रू प्लेजर, एंगेजमेंट एंड मीनिंग. कई कई एक्टिविटीज है, जैसे रीडिंग है, लिसनिंग टू म्यूजिक है, दैट यू कैन डू अलोन. चूज एन एक्टिविटी दैट यू एंजॉय डूइंग विथ अदर्स. ओके, तो ये आप समझो, अगर कोई एग्जीबिशन में जाना है, एग्जीबिशन में जा सकते हैं. अभी आपको पिक्चर जाना है, वो भी आप जा सकते हैं. दूसरा ये है कि चूज एन एक्टिविटी विच यू फाइंड मीनिंगफुल. Okay, Abid Surti said, okay, this is what I find meaningful. I want to save water. So this is what I am going to do. Okay, तो इसके लिए जैसे सर भी बोल रहे थे कि हमको वो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. बहुत टाइम हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारी जनरली महिलाओं को हम लोग देखते हैं कि 60 या 65 के बाद या फिर चिल्ड्रन सेटल डाउन होने के बाद जनरली हम लोग सोचते हैं कि अरे अभी मुझे क्या करना है, मुझे किस में इंटरेस्ट है. ओके, और फिर उसके बाद कभी कभी हमारा इंटरेस्ट को खोजना कभी कभी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. होगा ही, ऐसा नहीं बोल रही हूं. तो इसके लिए अगर हम लोग पहले से ही अगर हम लोग ये सोचते हैं कि अब बाबा ठीक है, मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है, ये मुझे एक छोटा सा कोर्स करना है, तो ये कोर्स मैं करूंगी और फिर इसमें आई वांट टू स्पेंड माय टाइम. बट यू ट्राई एंड थिंक अबाउट दीज थिंग्स, स्पेशली इन योर यंगर और व्हेन यू आर मिडिल में. जब भी सोचते हैं तभी शायद यू फील दैट ओके, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इसके लिए पहले से ही अगर आप करेंगे तो उसका फायदा आपको होगा. एक पहले से हम लोग कैसे कर सकते हैं, और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था, इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक जो व्यक्ति थे, बैंक में काम कर रहे थे. बैंक के मुझे लगता है 35-40 साल उन्होंने बैंक में काम किया, पर वो जो रिटायरमेंट के पहले जो 2-3 साल हैं, उनको पहले से फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था और फोटोग्राफी का उन्होंने
एक बेसिक कोर्स भी किया, फिर उनको उसमें इतना इंटरेस्ट आया कि उन्होंने एडवांस्ड कोर्स भी किया, और वो अपने बैंकिंग करियर में कभी भी वो परदेश नहीं गए थे, आउट ऑफ द कंट्री इंडिया नहीं गए थे। बट वो उन्होंने एडवांस्ड कोर्स करने के बाद उनको काफी इसमें कॉम्पिटिशंस में उन्होंने काफी सारे प्राइजेस जीते, एंड देन ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो abroad, and in 7 years he visited 6 countries. ओके, तो ये इकोनॉमिक टाइम्स में एक ये आर्टिकल आया था, एंड देन ही सेड, यू नो, दैट had I not thought about what I was interested in earlier, I would never have gone in for photography. But I knew कि मुझे ये करना है, I will be able to spend time. And all he had thought कि I'm going to spend time doing this. But he went so much ahead that he put up his own exhibitions in foreign countries also. Okay, in India also and in foreign countries also. तो इसके लिए हमको अवेयरनेस होना कि मुझे क्या अच्छा लगता है. As we always say, finding our ikigai. Okay, finding my interest area. जैसे that flautist thought कि बाबा डॉक्टरी तो मेरी हो गई, उसके बाद मुझे क्या करना है अभी. ये खुद ही सेल्फ अवेयरनेस होना, मुझे पता होना कि मैं किस में खो जाती हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है. हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जैसे अग्रवाल सर भी कह रहे थे कि जैसे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम लोग इतने खो जाते हैं कि जनरली क्या करना है, क्या हमारा इंटरेस्ट एरिया है, वो इसके बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं, और फिर रिटायरमेंट में और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. कंटेंटमेंट. ओके, कंटेंटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है. फीलिंग सेटिस्फाइड, फीलिंग कंटेंट. ओके, एज मैडम इज सेइंग, जॉय ऑफ हैविंग द डिजीज. तो वहां पे उन्होंने कहा है, एंड नाउ वी डोंट हैव टू मच टाइम, बट ये गाइडेड इमेजरी जो हम लोग बोलते हैं कि कोई मतलब समझो कोई the fact that, you know, maybe you are going to a beach, or maybe you are going to a forest and it is very serene, it is very peaceful out there. इसके बारे में आप visualize कर सकते हैं. So that will help you if I am feeling anxious. तो फिर तभी मुझे वो मदद हो सकती है. Okay, method acting. मेथड एक्टिंग टेक्निक्स यानी उन्होंने मतलब रिसर्च में, साइकोलॉजी में उन्होंने कहा है कि थिंग्स विच हैव मेड मी फील गुड in my earlier times. Okay, तो अगर समझो मुझे ये I know how it made me feel. Okay, if there is some achievement that I have, okay, so try and think about that achievement. Who all were there with me during that achievement? How do I feel? Do we really think about our own achievements? Do we really think about what I have achieved in life? Okay, तो ये मैंने मतलब लास्ट प्रेजेंटेशन में मैंने शायद इसके बारे में भी बात की थी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एथिकल विल्स. हमारे फाइनेंशियल विल्स तो होते ही हैं, बट ये एथिकल विल्स यानी क्या, कि एथिकल विल्स यानी व्हाट आर द लेसन्स. एथिकल विल्स जनरली लोग लिखते हैं. ओके, सो दीज आर विल्स वेयर आई राइट अबाउट माय life and what I have learned in my life, the lessons that I have learned in my life, so that the younger generation can benefit out of my own experience. Okay, so if the mistakes that I have committed in my life, if I am able to share that and benefit the younger generation in some way, okay, so that can be useful for them. So what values, और आजकल के जमाने में इसकी बहुत जरूरत है कि what values have I followed in my life. ओके, तो ये परसों हम लोगों ने एक वेबिनार किया था कि द टॉपिक ऑफ द वेबिनार वाज कि व्हाई लर्निंग इज इम्पोर्टेंट इन एजिंग. और वहां पे डॉक्टर वाडिया करके एक न्यूरोलॉजिस्ट है, जसलोक में प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट वहां पे कहा था कि यंगर जनरेशन को, हम लोग सोचते हैं कि यंगर जनरेशन को ये पता है, टेक्नोलॉजी पता है, इंस्टाग्राम क्या है वो पता है, फेसबुक पे वो लोग पोस्ट ये करते हैं, पर यंगर जनरेशन जो है तो इनको जितने लगता है कि वो स्मार्ट है, वो दिखाते बहुत है, पर सच में
उनको भी एडवाइस की जरूरत है, उनको भी हेल्प या सपोर्ट की जरूरत है, और ये कहीं ना कहीं हम लोग भी कर सकते हैं। ओके, तो ये मेथड एक्टिंग, जिससे हमारे अचीवमेंट्स क्या है, अगर आप भी किसी को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो उससे आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये मेथड एक्टिंग टेक्निक्स यानी क्या, कोई भी सिचुएशन जिसके बारे में मुझे अच्छा लगता है उसके बारे में सोचना, या फिर उससे मुझे क्या अच्छे फीलिंग्स आए, try and carry forward those positive feelings to other situations, or when I am feeling down, so that I am able to overcome my negativity or my जो भी मुझे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं या हो रहे हैं, उससे थोड़ा सा उभर के आने के लिए मदद हो सकती है। ये इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी, तो ये बहुत बार हम लोग देखते हैं, और ये वृद्धत्व में हम लोग देखते हैं कि ये काफी कम हो जाता है। क्यूरोसिटी, ओके, ये ऐसा क्यों है? हमको सभी प्रश्नों के जवाब आते हैं क्या? कि देयर इज अ सॉन्ग, एक कोई पिक्चर में आया था, रॉक रॉक ऑन करके, कि ऐसा क्यों? ओके, तो ये मतलब बर्फ क्यों पिघलता है, बेसिक क्वेश्चंस जो है, आकाश नीला क्यों है। तो ये कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे हम लोग पूछते हैं, और मुझे अगर वो नहीं आता है तो फिर मैं अपने बेटी को भी बोलती हूँ कि मुझे मालूम नहीं है इसका उत्तर, हम लोग गूगल पे ये देखेंगे। तो ये जो है हमारी क्यूरोसिटी जो है वो क्यों कम हो जाती है? तो ये क्यूरोसिटी कहीं ना कहीं उसको सस्टेन करना ये बहुत जरूरी है। ओके, सो डेवलप अ हॉबी। अगर मुझे अभी पता नहीं चलता है कि मेरी हॉबी क्या है, तो पास्ट में मुझे कौन से एक्टिविटीज में इंटरेस्ट था, एज अ चाइल्ड मुझे कौन से एक्टिविटी में इंटरेस्ट था, इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो डेवलप अ हैबी, और उन्होंने कहा है कि इन अ मंथ के ट्राई 4 न्यू थिंग्स। Okay, so in a period, in 1 year, try 4 new things. Okay, and schedule it once in a week for an hour. Okay, तो मुझे अगर समझो, now it is my personal wish, as we say bucket list है, so I want to learn the tabla. I used to learn it. Okay, तो मुझे तबला में बहुत इंटरेस्ट है। I had learned French in my college, so I want to do that. I want to continue. ओके, मतलब मुझे जब भी और ज्यादा टाइम मिलेगा तो आई वांट टू डू दैट। सो वॉट एवर योर हॉबी, वॉट एवर योर पर्पज, वॉट एवर योर इकेगाई, शेड्यूल इट वंस इन अ वीक फॉर एन आवर, ओके, एंड डू समथिंग विच यू हैव नेवर डन बिफोर। Okay, so that is something which is very very important, trying something which you have not done before. इससे हमारा इंटरेस्ट भी मेंटेन हो सकता है और हमारी क्यूरोसिटी भी जागरूक हो सकती है। तो ये क्यूरोसिटी अगर होगी तो हमारे नेगेटिव इमोशंस बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कम हो सकते हैं। दूसरा ये है कि फैक्टर्स फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस। एक तो ये उन्होंने कहा कि हम लोग पॉजिटिव इमोशंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो कुछ कॉन्क्रीट उन्होंने यहाँ पे स्टेप्स बताए हैं। उसके ही साथ साथ अलग अलग जो फैक्टर्स हैं फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस, जो बहुत सारे स्टेप्स लोगों ने बताए हैं। तो गेट मोर रियलिस्टिक अबाउट चैलेंजेस। ओके, तो हम लोग बहुत टाइम देखते हैं कि there is this concept in psychology which is called catastrophizing. कैटेस्ट्रोफाइजिंग यानी क्या, कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं उसका सामना ही नहीं कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कल ही मैं एक आई वाज टॉकिंग टू वन लेडी हु वाज सेइंग दैट शी वाज 81 in good health. Only thing, she was not able to sleep properly at night. That was the major problem. So whatever sense that I was trying to give her, other people in the office were telling her, तो वो उनका ये था, बस मेरा ये, मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए। तो अगर इफ वी आर सो ऑब्सेस्ड विद द फैक्ट दैट ओके नींद मुझे आनी ही चाहिए, तो देन वो उसमें ही हम लोग इतने मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर उससे आगे हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप मेडिटेशन कीजिए। आप ये ऐसे फनी इंसिडेंट्स आप 3 लिख सकते हैं ताकि आपको
ये करते समय अच्छा लगे, बहुत सारे लोग जिससे उनको ग्रैटिट्यूड मतलब का फीलिंग आता है, ऐसे कुछ मतलब रियल लाइफ वो लिखते हैं उसके बारे में, इवेंट्स के बारे में। तो ये जो है वी नीड टू बी, इट्स नॉट मतलब ये उनको लग रहा था कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसके बड़ा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो वी नीड टू बी मोर रियलिस्टिक अबाउट आवर चैलेंजेस, बी मोर ऑनेस्ट अबाउट, तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है क्या, मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे मैडम ने कहा आई लाइक दैट, कि उसके आगे क्या, इज देयर अ सॉल्यूशन फॉर दैट। ओके, तो ये जनरली हम लोग सोचते ही नहीं है। और एक मैं आपको कहूंगी, डॉक्टर प्रेम भी आपके पास आए हैं बहुत बार बात करने के लिए, तो उनके पास भी एक पेशेंट आए थे जो जिनके साथ मैं बैठ के मतलब ऑब्जर्व कर रही थी, एंड वी वर ट्राइंग टू सजेस्ट डिफरेंट थिंग्स फॉर हिम। तो वो आए थे, तो उनको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम था। तो ये ब्लोटिंग के इसमें डॉक्टर प्रेम ने उनको दवाइयां वगैरह दी, और उन्होंने कहा कि जितना आपका ये कम हो सकता है उतना अभी कम हो चुका है, आप थोड़ा सा देखिए कि आप दूसरे चीजों में भी कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं ताकि आप पूरे तरीके से इससे ऑब्सेस्ड ना हो। तो उन्होंने कहा कि हमने ये भी बोला कि हमारे जो सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स है आप उसमें आइए, अटेंड करने की कोशिश कीजिए। पर वो क्या कह रहे थे, वो बुजुर्ग क्या कह रहे थे हमको कि पहले ये मेरा ब्लोटिंग का ये प्रॉब्लम पहले आप दूर करो, फिर मैं आपके मीटिंग्स में आके अटेंड करूंगा। तो ये जो है हम लोग देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स जनरली हमारे फिजिकल इलनेसेस जो है, या फिर मेंटल इश्यूज होंगे, या फिर मेरे घर में प्रॉब्लम्स होंगे, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होंगे, तो हम लोग उसके आगे जाते ही नहीं हैं। और ये कहीं ना कहीं वी नीड टू बी मोर रियलिस्टिक अबाउट आवर ओन चैलेंजेस। इसके आगे क्या, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है। तभी ही पॉजिटिव एटीट्यूड आ सकता है, तभी भी हम लोग ओवरकम करने की सोच सकते हैं। Okay, so that is one thing. The other thing, as we were saying, that reframing. मैडम ने कैसे कहा, द जॉय ऑफ हैविंग अ डिजीज। नाउ हु विल से द जॉय ऑफ हैविंग अ डिजीज? आई हैव नेवर हर्ड दिस। ओके, तो ये रीफ्रेमिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स है, एंड हियर दे हैव सेड दैट एडवर्सिटी A + B = C, यानी एडवर्सिटी प्लस योर बिलीफ इज इक्वल टू द कॉन्सिक्वेंस। तो एडवर्सिटी का मैं बिलीव अगर करती हूं कि दिस इज टोटली गोइंग टू डिस्ट्रॉय मी, then that is the consequence. If adversity ko I believe that there is something ahead, I am going to take treatment and I am going to do whatever is possible in my limits to become as well as possible. So then I will try and see different solutions for my problem. दूसरा ये है, उन्होंने कहा है कि रिलाइंग ऑन अदर्स। जब भी हम लोग रेजिलियंस के बारे में बात करते हैं तो वन सॉलिटरी फिगर, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई डोंट रिक्वायर अदर्स, ऐसा नहीं है। जहां पे मुझे मदद चाहिए तो वो वहां पे हमको मदद लेनी ही है। टॉक टू अदर पीपल अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। तो एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि along with helping others, contributing to others, it is also an art to accept the help that we are getting. बहुत टाइम हम लोग क्लोज होते हैं कि भाई मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है, बट अगर समझो मुझे अभी, if I am feeling down, if I am feeling depressed, and if I call someone, then do it. If they tell you, okay, I'm busy, I will talk to you later, that's fine. But at least make that attempt. And if you really, if you get a call from that other person back, then you know that that person is genuinely interested in either helping you or in your issue. So इसके लिए relying on others and also accepting help, ये भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। दूसरा उन्होंने एक टेक्निक यहाँ पे दिया है कि कॉन्फिडेंस ट्रांसफरल। ओके, तो कॉन्फिडेंस ट्रांसफरल यानी आपको कई चीजों में, आपने समझो अकाउंट्स किया है, इसमें आपने समझो 30 साल काम किया है, इसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, कुछ भी आपने सामने अकाउंट शीट आती है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये जो आपकी जो अचीवमेंट है,
तो अगर समझो आपको कुछ करना है, अगर आपको संगीत सीखना है, उसमें संगीत में आपको इतने अच्छे से वो नहीं आ रहा है, तो ये आपकी अचीवमेंट रही है, तो ये मैं कर सकती हूँ। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो वहां पे भी मैं थोड़ी बहुत कोशिश तो डेफिनेटली कर सकती हूँ। तो ये जो है मेरा कॉन्फिडेंस, अगर मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ, आई एम नॉट डूइंग सो वेल, so then it will help me, it will enable me to at least attempt doing that activity. And that is what they call it as confidence transferal to other aspects in which I feel I am not doing so well. Okay, acting on one's optimism. हम लोग बोलते हैं अरे होप होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बट वो एक्टिंग, इवन इफ इट इज अ स्मॉल स्टेप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. होप तो समझो सभी को मालूम है, पर वो फील करने के बाद एक्टिंग ऑन दैट is also very very important. Another example which I will give you is of this kaun the, and I'm sure you might have read of this person, फौजा सिंह. फौजा सिंह बहुत बड़े, उन्होंने बहुत ये मैराथन्स ये किए हैं, एंड ही इज कॉल्ड द टर्बन टॉर्नेडो. ओके, तो इनके ऊपर एक फिल्म भी आने वाली है. तो ये ही इज एक्चुअली अ ब्रिटिश सिख फ्रॉम इंडिया. तो इन्होंने बहुत सारे मैराथन्स इन्होंने जीते हैं, और इन्होंने ही स्टार्टेड रनिंग मैराथन्स आफ्टर हिज वाइफ डाइड. Okay, after his son died, wife and son both passed away, और उसके बाद उन्होंने, because he did not get sleep, he said that I am going to try running. He had never run till the age of 83. Okay, and he started running at the age of 83, and 89 में उन्होंने लंदन मैराथन ये किया, and today he has run many marathons, but he started at the age of 83. Okay, तो ये बहुत जरूरी है, एक्टिंग ऑन इट. एंड उनका जब भी वो भाग रहे थे, तभी उनका एक ही लक्ष्य था कि ये जो मतलब मेरे वाइफ के बारे में, सन के बारे में मुझे कॉन्स्टेंटली ख्याल आते रहते हैं, तो उससे मैं थोड़ा सा मतलब उससे मैं ऊपर आ सकूं. और दूसरा ये था कि मेरे को थोड़ा सा चैन की नींद आ जाए, एंड बिकॉज आई शुड फील सो टायर्ड दैट आई विल बी एबल टू स्लीप. That was the only intention, purpose that he had when he started running. Okay, तो ये जो है, okay, so acting on our this, you know, he just said, someone told him that, you know, marathon hai, why don't you run? So if I am not optimistic, if I am not going to be resilient, if my attitude is going to be negative, I will not take any step, leave alone small step. ओके, तो इसके लिए ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है. दूसरा ये है कि बीइंग कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल, और ये जनरली हम लोग ये देखते हैं कि कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल वृद्धत्व में वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है. एक ही तरीके से हम लोग फंक्शन करते हैं, एक ही पैटर्न से हम लोग जनरली मतलब आगे बढ़ते हैं. तो ये जो है कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल, अलग अलग कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं. आगे वाला जो बोल रहा है मैं सुन रही हूं क्या, या फिर मुझे लगता है कि मैं जो कह रही हूं वही सबसे सही है. ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होना, और ये भी है मे बी इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, पर्सनैलिटी भी हमारी अगर हम चाहते हैं तो वो चेंज हो सकती है. इफ वी आर really flexible, we can change certain things, we can learn at any age, and it is beneficial. That is what came out of our webinar. Okay, उतने ही आपके जो ब्रेन में जो कनेक्शंस होते हैं वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं. Okay, तो ये being cognitively flexible, okay, even though that person might be criticizing me, am I willing to listen to what that person is saying? अलग अलग solutions उससे आ सकते हैं. तो ये कहीं ना कहीं constantly ये होना बहुत जरूरी है. Okay, and there are some questions which are there for assessing resilience. तो ये
if you want, you can go through these questions. I can send Dr. Sengupta. So, why do you think you have lived such a long life? What is your life philosophy? How would you describe your relationships with your friends, family and neighbors? What do you do when you face difficulties in your life? ये हमको क्यों सोचना है ताकि we develop और we are aware of कि हम लोगों ने crisis कैसे झेले हैं before another crisis comes, so that we are able to apply the techniques, okay, and the strategies that we have used earlier. Okay, so these are some of the questions which are there, and there's a lot of research which has been done on resilience also, as I have been telling you. So ye resilience, rebounding, coming back, okay, understanding my own positive traits, okay, that will help me to be more satisfied, more content, and also age in a better way. Okay, तो physical decline अगर होगा तो उसके साथ साथ ही इमोशनली हम लोग नीचे जाएंगे, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है. बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं फिजिकली एकदम डाउन होते हैं, बट मेंटली, कॉग्निटिवली, इमोशनली देयर स्टेट इज मच मोर पावरफुल देन देयर फिजिकल हेल्थ. तो ये कहीं ना कहीं डेवलप करना, ये काफी सारा हमारे हाथ में है जो हमको करना है. एंड बीइंग मोर रेजिलिएंट will also help us to become a better person, a better human being, and that is what our attempt should be all the time. और इसी के ऊपर एक छोटी सी आपको मुझे अभी ध्यान में आ रही है, इसके लिए कविता जो है आपके सामने बोलती हूँ, and I will end my talk. कि एक कविता थी हमको, माँ मैं तो इंसान बनूंगा. एक बच्चा अपने माँ को बोलता है कि माँ मैं तो इंसान बनूंगा. स्वर्ग लोक में देव बहुत है, पृथ्वी पर दानव रहते हैं. स्वर्ग लोक में देव बहुत है, पृथ्वी पर दानव रहते हैं. भूल गया जग बहुत समय से, कौन किसे मानव कहते हैं. इसीलिए मैं देव न दानव, मानव की पहचान बनूंगा. माँ मैं तो इंसान बनूंगा, माँ मैं तो इंसान बनूंगा. आज विश्व में हास नहीं है, आज विश्व में हास नहीं है. जीवन में उल्लास नहीं है. प्राणी का प्राणी पर भी माँ आज तनिक विश्वास नहीं है. इस चीर रोगी जग के रोगों का अवसान बनूंगा. माँ मैं तो इंसान बनूंगा, माँ मैं तो इंसान बनूंगा. राजा नहीं किसान बनूंगा, देह नहीं मैं प्राण बनूंगा. शांति नहीं तूफान बनूंगा, पतन नहीं उत्थान बनूंगा. जिसे काल भी ना मिटा पाए, मैं वह अमिट निशान बनूंगा. माँ मैं तो इंसान बनूंगा, माँ मैं तो इंसान बनूंगा. तो आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे सुन लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. फैंटास्टिक कविता, वेरी फैंटास्टिक, वेरी नाइस कविता सुनाया आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. Very nice session, Amrita. Very fantastic, wonderful session. Nice session. We enjoyed it. Enjoyed it. Motivating session. The poetry was. Thank you. Thank you, madam.